ओके सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम जेनेटिक्स, ये 104 से 109 तक हैं, फिर 223 टू 225 और आगे 465 और 480 है। इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग पॉइंट नंबर 104 टू पॉइंट 109 और साथ में जो है एक 284 पॉइंट हम करेंगे जिसमें बिकॉज दैट इज टाइज इन विद पॉइंट 109, ठीक है। एज वी गो ऑन आई विल टेल यू हाउ. Okay, now bar bodies. Okay, bar body is diagnostic for Turner. First of all, I want to tell you people what bar bodies is, or just for the revision purpose. ठीक है, bar body जो है, it is an inactivated X chromosome and it was named after the scientist who discovered it, known as Murray Bar. ठीक है, it is rendered this देखिए, females have two X chromosomes, so one is active in every cell and the other is inactive. ठीक है, तो जो inactive होता है, it is rendered inactive in a process called lyonization. That is the rest, मतलब इससे ज़्यादा डिटेल नहीं ज़रूरत, ठीक है, as far as part 1 is concerned. ठीक है, bar bodies can be seen in neutrophils at the rim of nucleus. सही है, neutrophils में they can be visualized, सही है, near the rim of the nucleus, सही है, we can see them. ठीक है, bar bodies can be seen. Okay, ठीक है. नाउ डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर कैसे हैं कि बार बॉडीज विल बी एब्सेंट, क्योंकि टर्नर में वी नो कि हमारा जो कैरियोटाइप है दैट इज 45XO, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम हमारे पास होता नहीं है, तो इट विल बी लैकिंग बार बॉडीज. सही है, सो द लैक ऑफ बार बॉडीज इज डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर. ठीक है, वाइल आस्क्ड व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टर्नर, ठीक है, तो दैट इज कैरियोटाइपिंग. बार बॉडीज एब्सेंट इन टर्नर. स्कैंटी बार बॉडी जो है दैट इज प्रेजेंट इन टर्नर. ठीक है, बार बॉडीज टोटल एक्स क्रोमोसोम -1. इन XXX देर आर 2 बार बॉडीज. ठीक है, मतलब ये एक एक्टिव रहेगा और दो नेगेटिव हो जाएंगे, तो 2 बार बॉडीज आ जाएंगी. 1 बार बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई और द सेल ऑफ नॉर्मल फीमेल. वेब नेक एंड एब्सेंट बार बॉडी इज डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर सिंड्रोम. Absent bar bodies are present in Turner syndrome. Bar bodies most commonly related with which blood cell? Neutrophil. Okay, because they are visualized easily in neutrophil. Okay. Now karyotype of a true hermaphrodite और pseudo hermaphrodite का आगे टेबल है which we will be doing shortly. ठीक है, तो 46XX या 46XY, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों टाइप ऑफ कैरियोटाइप्स होते हैं. ठीक है, 45XX का जेनेटिक मेकअप भी है और XY भी है. ठीक है, सूडो हर्माफ्रोडाइट 46XY, तो एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम दैट इज कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया, बाहर एम्बिगुअस जेनेटेरिया होता है जिसकी वजह से यू आर अनएबल टू डिफरेंशिएट मेल और फीमेल. ठीक है, क्लिनफिंटर सिंड्रोम का कैरियोटाइप 47XXY. Turner syndrome 45X0, male pseudo hermaphrodite 46XY, female 46XX, complete mole we just did in the previous video 46XX and 46XY. ठीक है, partial mole 69XXX, 69XXY, 69XYY. और CAH में हमारे पास हमेशा karyotype will be normal but ambiguous genitalia due to the presence of certain hormones. We'll be shortly doing it in the videos which will be covering the adrenal gland. Sorry. Okay, so a scenario of gynecomastia, tall heighted chromosomal study shows XXY Klinefelter syndrome. Acha, these syndromes have been covered in this table very nicely. Klinefelter syndrome, the knowledge that we need to know just for the sake of part 1. Karyotype 47XXY manifested by male. Gynecomastia is a highlighted features. All males with Klinefelter syndrome will have gynecomastia. Okay, tall stature, male hypogonadism, atrophic testes. Okay. Turner syndrome, karyotype X0, 45X is characteristic, manifested by females, female hypogonadism, replacement of the ovaries by fibrous streaks, infantile genitalia and poor breast development, short stature, web neck. CVS abnormality important है कि टर्नर के साथ कौन सी एसोसिएटेड है, दैट इज कोएक्टेशन ऑफ अयोटा. फेमरल की पल्सेस जो है दैट इज पोस्ट डक्टल कोएक्टेशन ऑफ अयोटा विल बी लेस देन द ब्रेकियल पल्स. ठीक है, Turner syndrome is also often associated with autoantibody mediated hypothyroidism. These important associations we need to remember. Cardiovascular. Okay, one is cardiovascular. The second is autoantibody mediated hypothyroidism. Then it is horseshoe shaped kidney. Okay, and horseshoe shaped kidney का ascent जो है वो कौन सी vessel prevent करती है? IMA will prevent it. ठीक है, most common cause of primary amenorrhea, no bar body is there. ठीक है, इसके साथ साथ Turner syndrome में there is increased carrying angle. What is carrying angle? Carrying angle is also known as cubitus valgus. ठीक है, ये ह्यूमरस है, shaft of humerus है, और ये जो है आगे हमारे पास रेडियस और अल्ना है. This is arm and this is forearm. ये
Angle of the humerus with the angle of radius and ulna या angle of the arm with the angle of the forearm is known as the carrying angle. ठीक है, नॉर्मल इसकी रेंज है 3 to 29 डिग्रीज. इससे ज़्यादा हो तो इट इज़ क्यूबिटस वैल्गस. ठीक है, एंड इट इज़ इंक्रीज इन टर्नर सिंड्रोम. और दूसरा एक न्यूनैन सिंड्रोम है, उसके साथ भी एसोसिएटेड है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट डिटेल ओवर हियर. ओके, सही है. फिर टर्नर सिंड्रोम की एक और इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ, वो एसोसिएटेड है. नाउ व्हाट इज सिस्टिक हाइग्रोमा? Cystic hygroma, it is an important marker of aneuploidy. Aneuploidy हम किसको कहते हैं? मिसिंग या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने को बॉडी में, वी कॉल इट aneuploidy. ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टिक हाइग्रोमा? एक मैक्रोसिस्टिक लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन होती है इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ बिटवीन नेक एंड एक्सेला, एंड 75% ऑफ द केसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडी में इट इज सीन. ओके, ठीक है, तो इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद टर्नर. ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं. क्लासिक फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम स्ट्रीक ओवरीज सही है. और खैर ओके, before going on to that, I want to cover this Marfan syndrome as well. Marfan syndrome is a connective tissue disorder due to deficiency of fibrillin. Okay, Marfan has F is deficient, that is fibrillin. Okay, characteristics include defects in skeletal, tall and thin, hyperextensible joints, spider-like fingers, arachnodactyly, visual में dislocation of ocular lens which is known as ectopia lentis, cardiovascular में aortic dissection भी होती है और mitral valve prolapse भी होता है, क्योंकि सारे जो valves and they're floppy, they have very high elastic tissue. ठीक है, fibrillin की deficiency होती है तो they're very elastic. ठीक है. Okay, characteristic feature of Turner syndrome: streak ovaries, short stature, web neck, X naught. Cystic hygroma associated with Turner. Characteristic feature of Turner syndrome: short stature. Turner syndrome is associated with stunted growth. That's the main feature. A female with primary amenorrhea, web neck, and height 141 centimeter. What would be her karyotype? Okay, so this is X naught, a patient with karyotype X naught. It's the same. I'm not going to read all of this. TK, small testes, gynecomastia, XXY. I'm just going to revise the highlighted ones. Klinefelter complaints of gynecomastia. C, gynecomastia is everywhere. Klinefelter, elongated body and gynecomastia. Klinefelter. TK, about Klinefelter syndrome, most appropriate statement is gynecomastia is always present. Okay. Klinefelter syndrome is a lytic cell hyperplasia. Klinefelter syndrome में there is lytic cell hyperplasia. ओके, एंड ये लेडिक सेल हाइपरप्लेजिया क्यों होता है, इसकी कॉज जो है ये बहुत डिबेटेबल है, बट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि लेडिक सेल हाइपरप्लेजिया जो है वो क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम में होता है. स्मॉल हाइपोइकोइक नोड्यूल्स जो हैं वो टेस्टीज में नजर आएंगे एंड दे शो लेडिक सेल हाइपरप्लेजिया. ठीक है, सिनेरियो ऑफ मेल विद XXY क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम. ठीक है, अ फीमेल विद प्राइमरी एमेनोरिया, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. व्हाट वुड बी हर कैरियोटाइप? 45X0, शॉर्ट स्टेचर, एमेनोरिया, वेब नेक, 45X0. अच्छा, a patient with well-developed breast and secondary sexual characteristics but has primary amenorrhea. What is the cause? Genital ridge abnormality. What is genital ridge forms? It is a somatic precursor of gonads in both sexes. सही है, तो अगर primary amenorrhea है और secondary sex means के ovaries are not present. ठीक है. Lens dislocation with hypermobile giant. Diagnosis: Marfan syndrome. A tall young man present with sudden excruciating chest pain and dyspnea. On examination BP 90/50. Subluxation of lens. Condition associated with dissecting aneurysm, aortic aneurysm. ये भी similar scenario है, dissecting aortic aneurysm. A young man diagnosed as Marfan syndrome will have defect inherited in fibrillin. ठीक है, Marfan F, fibrillin. ठीक है, mid systolic murmur. ठीक है, mitral valve prolapse. As I said, echo shows leaflet of mitral valve displayed upward and aortic insufficiency, lens dislocation, defect in fibrillin. ठीक है, ये दो points जो है I'm going to cover them with even if I read them out, they're not going to be of any benefit with the endocrinology portion of the adrenal gland. Okay, now coming to point 108, a female baby with sex chromatin positive and enlarged clitoris. Diagnosis is androgenital syndrome. That is again the congenital adrenal hyperplasia and pseudo-hermaphrodite. ठीक है, complete mole and partial mole I have done shortly in a previous video. ठीक है, वही karyotype 45XX and 46XX and 46XY in complete mole. Complete mole for the revision purpose is a father's fault. Paternal duplication होती है, sperm होता है plus enucleated egg होता है. ठीक है, honeycombed uterus or cluster of grapes or snowstorm appearance on ultrasound. ठीक है, partial mole जो है it is formed by the egg plus two sperms. ठीक है, for 69XXX, 69XXY and 69XYY. ठीक है, true hermaphrodite. This rare condition is characterized by both ovarian
and testicular tissue, male plus female tissue and male plus female chromosomes. Both are present in a single human being, ठीक है, and ambiguous external genitalia. This is a true hermaphrodite, ठीक है, और इसका genetic makeup will be 46XX and 46XY. Few cells will mosaic pattern होगा, few cells of XX, few cells of XY, ठीक है. What is a pseudo hermaphrodite now? ठीक है, इसमें दो हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है. जीनोटाइप मेल का XY ये है और फीमेल का XX ये है, ठीक है, और इसके गोनाड्स भी टेस्टीज हैं और इसके गोनाड्स ओवरीज हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज नॉट क्लियर, ठीक है. तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर एम्ब्रियोलॉजी और हार्मोनल, कहाँ से आता है मेल्स में, मतलब विच हार्मोन गिव्स सिग्नल, DHT, ठीक है. तो DHT को अगर एक्सटर्नल जेनेटेलिया इनसेंसिटिव हो जाए, विच इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, तो दिस विल लीड टू एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है. और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट किस तरह होगा कि फीमेल में एम्बिगुअस जेनेटेलिया विल बी ड्यू टू कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है. ovaries there are but external genitalia is not there, for which we need estrogen, ठीक है. तो इसमें viralization हुई है, ठीक है. We cannot see the, because of the viralization female structures are not present over there, okay. Here there should be. अच्छा, now okay, patient with 46XX and ambiguous genitalia, congenital adrenal hyperplasia, lady with 26-week gestation, has uterine height of 24 weeks. On sonography, there is no fetal parts and shows storm appearance. Likely diagnosis is karyotype 46XX. ठीक है. ये जो है कंप्लीट मोल है, तो इसलिए ठीक है, ये कंप्लीटली फादर्स फॉल्ट है, तो कैरियोटाइप 46XX की आई डोंट नो ऑप्शंस में और क्या क्या था, बट ये दो होंगी, या तो XY and XX both are for the complete mole. A normal looking girl with height 5 feet on ultrasound, she was having short blind vagina with normal vulval scanty pubic and axillary hairs, normal breast, absent uterus. Her karyotype is 46XY. This is testicular feminization syndrome, ठीक है. ये बिल्कुल फेमिनिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता DHT को, ठीक है. अगर ये जेनेटिक मेकअप बाय द वे 46XX होता, ठीक है, और यही सारे होते फीचर्स, सही है, लेकिन ओवरीज फंक्शनल होती, बट यूट्रस और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के जो डेरिवेटिव्स हैं वो नहीं होता, लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना प्रेजेंट होता, तो दिस इज नोन एज मुलेरियन एजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड मेयर रोकिटेंस्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम, ठीक है. बट द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट विल बी 46XX, okay. Now, a girl 18 years old with a history of amenorrhea, normal appearance, secondary sexual on ultrasound, absent ovaries and uterus. What is the cause? Testicular feminization syndrome. Okay. Okay, now moving on to these points. ओके, सो पॉइंट नंबर 109 में ये है कि एक लॉन्ग सिनेरियो है, ठीक है, जो कि दिया होगा. अ चाइल्ड विद हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी हैविंग सम कार्डियक प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस मेंशन्ड, 22q11 डिलीशन, डाइजॉट सिंड्रोम, ठीक है. पहले डाइजॉट सिंड्रोम को ही देख लेते हैं. कैच 22 इसका निमोनिक है, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज, एब्नॉर्मल फेशियस, टी सेल डेफिसिट, बहुत सारे इन्फेक्शंस मल्टीपल दिए होंगे आपको सिनेरियो में, ठीक है. थाइमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. ये डेरिवेटिव कहाँ का और इसकी डिटेल जो है वो इस दफ़ा पॉइंट 109 खत्म हो जाए उसके बाद आई गिव, ठीक है, वो आगे पॉइंट 284 में है, ठीक है. एंड माइक्रो डिलीशन 22q11, ठीक है. इससे ऊपर है क्राइडू कैट सिंड्रोम. वी हैव अ वेरी गुड निमोनिक हियर, स्मॉल हेड कैट, स्मॉल हेड से हमारे पास माइक्रोसेफेली एंड मेंटल रिटार्डेशन दोनों आ गए. क्राइंग कैट लाइक क्राई होती है बेबी की, लॉस्ट $5, 5th आर्म की शॉर्ट डिलीशन है, हार्ट शेप पर्स, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस भी है, ठीक है, साथ में. फिर एडवर्ड सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18, ठीक है, प्रिंस एडवर्ड, ठीक है. इसके साथ प्रोमिनेंट ऑसिपिट, रॉकर बॉटम फीट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिसजंक्शन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है जो इसके एन्यूप्लाइडी कॉज करता है, ठीक है. ओके, सॉरी, ओके फॉर द ग्लिच. ओके, नाउ क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स एंड लो सेट ईयर्स, ठीक है. फिर Patau syndrome or trisomy 13. Don't worry, once I'm through with this table, I'm going to show you images of each of these aneuploidies, okay. Now, trisomy, because it's very hard to remember it like this. Trisomy 13, 3M, 3P, mental retardation. For 1M, microcephaly, ठीक है, microphthalmia, okay. Wait a second, okay. Cleft lip and palate and polydactyly, ठीक है.
फिर डाउन सिंड्रोम की अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग वेन वी आर स्क्रीनिंग इज, तो उसमें न्यूक्लियर रिजिडिटी आएगी, और डायग्नोसिस के लिए फिर ट्रिपल स्क्रीन में हम BAE लेते हैं, ठीक है। बीटा HCG इंक्रीज होगा, बाय विल गो अप, बीटा HCG इन इनहिबिन, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी गुड निमोनिक, बट इफ यू कैन कम अप विद अ बेटर वन, गो अहेड। एंड AE अल्फा फीटोप्रोटीन और ईस्ट्रायोल जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब इनहिबिन को इसमें ऐड कर दें तो क्वाड्रुपल स्क्रीन बन जाती है। ओके, नाउ ट्राइसोमी 21, 95% ऑफ द केसेस में इट्स ट्राइसोमी, एंड 5% ऑफ द केसेस में देयर मे बी रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फिर मेंटल रिटार्डेशन, इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड नेजल ब्रिज, वाइट स्पेस्ड आइज, दैट इज हाइपरटिलोरिज्म, epicanthal folds, large protruding tongue, low set ears, simian crease, also known as single palmar crease. Okay, now with the images. Okay, so here is the baby, और इसके वी कैन सी कि यहाँ पर जो है ये वाइट स्पेस्ड आइज हैं, ठीक है, एपिकेंथल फोल्ड हैं, ये अप गोइंग अप स्लांटिंग पेल्पेब्रल फिशर है, ठीक है, यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड है, लो सेट ईयर्स हैं, लार्ज प्रोड्यूरिंग टंग है, redundant skin over the neck which will cause nuchal translucency, brachycephaly है, low set ears. It's not very clear image, but anyways, okay. And the next image, wait a second, it's here. Okay, so the next image, इसमें जो है I have got to zoom in. Okay, wait, give me a second. Okay, ये जो है टूवर्ड्स द हेयर, ओके, ठीक है, ये 18 है, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें देख लें, ऑसिपिट, प्रोमिनेंट ऑसिपिट, स्मॉल माउथ जॉ, शॉर्ट नेक, डिस्प्लास्टिक और मैलफॉर्म्ड ईयर्स, क्लिंच फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, ठीक है, प्रोमिनेंट स्टर्नम, वाइड स्प्रेड निपल्स एंड क्लेंच्ड हैंड्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये तो हो गया है। फिर फ्लेक्स्ड बिग टो with prominent heels, which is known as ye. This presentation is rocker bottom feet. Okay, now moving on to Patau syndrome, ठीक है, इसमें small head, absent eyebrows, cleft lip and palate है, dysplastic malformation है, और इसमें clenched hands हैं, but साथ में polydactyly भी है, extra fingers हैं, and cryptorchidism और undescended testes can be there. Okay, so I hope this helps you guys out. Okay, now reading out the points. Okay, the incidence of Down syndrome, ये इसमें important है कि 40 years of female में 1:100 इसकी occurrence है, ठीक है। The kid presented with short stature, ये सारे scenarios हैं, ठीक है। Trisomy 21, this again chromosome 21, very obvious scenario once you go through the table. During meiosis, abnormalities may occur if one of the cell gets an extra chromosome instead of haploid number. This condition is called trisomy, ठीक है। A baby with small retinal dysplasia and optic nerve problems, trisomy 13, Patau syndrome. Beta HCG, PAP A क्या है? Pregnancy associated plasma protein A, and it is low in multiple चीज़ों में होता है, ठीक है। अगर लो बर्थ वेट बेबी है, या फिर देयर इज एन इम्पेंडिंग मिसकैरेज, या डाउन सिंड्रोम, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक फॉर डाउन सिंड्रोम, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन करेंगे जिसमें BAE ट्रिपल स्क्रीन है, दैट इज बीटा HCG AFP ईस्ट्रायोल, और क्वाड्रुपल स्क्रीन के लिए साथ में इनहिबिन भी करेंगे। बीटा HCG एंड इनहिबिन विल गो अप एंड AE विल गो डाउन, ठीक है। लॉन्ग सिनेरियो ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड यू टुक द विलिस सैंपल, व्हाट डू यू वांट टू सी? साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी। ओके, मोस्ट कॉमन chromosomal abnormality Down syndrome है. Down syndrome is associated with Alzheimer disease because it is very famously associated with beta amyloid proteins. Down syndrome में होते हैं और tau tangles बनते हैं in brain, ठीक है, which leads to Alzheimer disease early onset, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी विद टेटनी, कैल्शियम, सी इट इज अ क्लासिक सिनेरियो, लेवल गिवन, ठीक है, लो कैल्शियम होगा। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज मर्मर, बेबी इज सफरिंग क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम भी, इन्फेक्शन बाय न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, एस्परजिलस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, देखिए 3 इन्होंने दिया, तो टी सेल डेफिशिएंट डाई जॉर्ज 22q डिलीशन, ठीक है। दिस व्हाट दे वांट यू टू नो। ओके, नाउ वी विल गो टू पॉइंट नंबर 184. ओके, okay, thymus develops from endoderm of third brachial pouch, ठीक है। ना I did the video जिसमें मैंने pharyngeal arches और pharyngeal clefts और सब pouches वगैरह बनाए थे, तो इसमें I showed कि जो third brachial pouch होता है, फर्स्ट से हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था और जो वो बन रहे थे, सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो बीच में बनेगी, जो यूस्टेशियन ट्यूब और ये ऑडिटरी कैनाल वगैरह आ रहा था और मिडल ईयर आ रहा था, ये बन रहा था। सेकंड से हमारे पास जो है वो पेलाटाइन टॉन्सिल और पेलाटाइन फोसा था, और थर्ड वाले में डॉर्जल एंड वेंट्रल डिविजन्स थी। डॉर्जल में हमारे पास आ रहा था
इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो वेंट्रल था उसमें आ रहा था थाइमस, ठीक है। फिर फोर्थ के जो डॉर्जल है उसमें सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और वेंट्रल में अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी है जो कि पैराफोलिकुलर सेल्स बचाएगी। खैर, दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। थाइमस इन इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड विल डेवलप फ्रॉम द थर्ड ब्रेकियल पाउच, while superior parathyroid gland is developed from fourth brachial pouch located in the anterior। अच्छा, अब ये थाइमस की बात हो रही है कि ये एंटीरो सुपीरियर मीडियास्टिनम में लोकेटेड होता है, ठीक है। और जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं ना, दे कैन बी एनीवेयर फ्रॉम अबव टू द मीडियास्टिनम, ये मैंने कल भी कहा था, ठीक है। ओके, उस दिन ओके, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट थाइमस, ओके। टी थाइमस इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस इज अ साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मेच्योरेशन। थाइमस ब्लड सप्लाई हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ऑल्सो बाय द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक, ठीक है। नाउ अच्छा, अब इसकी दो डिजीजेस इंपॉर्टेंट, एक इसका हाइपोप्लेजिया या एप्लेजिया है डायजॉर्ज सिंड्रोम में। डायजॉर्ज सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच वी आर गोना कवर शॉर्टली, ठीक है। उसमें जो है ये हमारे पास थाइमस नहीं होता, थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है, और उसमें हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया भी होगा बिकॉज ये पूरा थर्ड ब्रेकियल पाउच नहीं है, तो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी चले जाते हैं, थाइमस भी चला जाता है, ठीक है। ओके, नाउ और सिवियर एंड ऑल्सो इन सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में भी हमारे पास हाइपोप्लेजिया ऑफ द थाइमस होता है, ठीक है। थाइमोमा, वैसे इन चिल्ड्रन थाइमस इज नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन अगर अडल्ट्स में थाइमस इज प्रेजेंट इट इज नोन एज द थाइमोमा। और थाइमोमा जो है वो अडल्ट्स में डिफरेंशियल है, बच्चों में यूजुअली थाइमस होता है और सेल साइन होता है ऑन द चेस्ट एक्सरे और इन द ऑफ द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एंड दैट शोज थाइमस, ठीक है। इट इज अ बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ थाइमस एंड इट इज एसोसिएटेड विद माइस्थेनिया ग्रेविस एंड सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ओके। नो लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन थाइमस, सही है, थाइमस में कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं होते, कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। और ये भी रफ डिवीजन है जो कि हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर हुई है, ठीक है। एज सच कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। विच इज लॉब्यूलेटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, और इसमें लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास दैट इज द थाइमस, ओके। अबाउट टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर इन थाइमस आफ्टर बर्थ, cells differentiate in thymus to become cytotoxic cells. It differentiates it into both helper as well as cytotoxic cells, but if you have to choose one, choose cytotoxic, okay. Remember this in point, all such sentences of Rafula are very high yield, okay. Third pharyngeal pouch cell arises from thymus, okay. Cardiac surgeon operating for the patent foramen ovale, which structure will come in the contact in the interior mediastinal when opening thymus, ठीक है। और patent foramen ovale यूजुअली चिल्ड्रन में होता है, यंग पॉपुलेशन में तो इंटीरियर mediastinum जब वो ओपन करेगा तो पहले thymus आएगा, ठीक है। which prevent foreign antigen to gain access to developing lymphocytes, blood thymus barrier होता है, जिस तरह blood brain barrier है, blood testicular barrier है, इस तरह blood thymus barrier भी है। During development, T lymphocytes are protected from autoimmune destruction by blood thymus barrier structure that lies in the anterior mediastinum thymus. In a young child, immature T cells are present in which part of the thymus? Cortex, ठीक है। और immature T cells are present in which part of the thymus? Deep paracortex, ठीक है। ये जो है ना कॉर्टेक्स है, और ये पैराकॉर्टेक्स है, और ये मेडुला है, यहाँ से सेल्स इमेच्योर होते हैं, फिर ये मेच्योर होते हैं, फिर फर्दर मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ दे आर सेइंग के मेच्योर सेल्स कहाँ, इमेच्योर यहाँ पर होंगे, मेच्योर बिल्कुल यहाँ मेडुला सेंटर में होते हैं, ठीक है, ओके। Thymus at the age of 10 years extends from the lower border of the thyroid to fourth costal cartilage, ठीक है। Lymphoid mass with supporting structure spleen, lymphoid mass with no supporting tissue thymus, okay.